Welcome students, myself Vishwaranjan and I am a subject teacher. Today I will bring a new subject for you under the same course PDIS, Post Diploma in Industrial Safety, and under the same subject Safety Management, and under the same chapter, that is Safety Management System SMS. In paper class we will discuss about the safety organizations in which safety management system or through which safety management system works. Today we will discuss about its four basic pillars or four basic components or four basic functional units or functional components of safety management system. Here we see the safety management system is divided into four components. First one is your safety policy, second one is your safety risk management, third one is your safety promotion, and fourth one is your safety assurance, or safety assurance third one, or safety promotions fourth one. So these are the four basic pillars, or these are the four basic functional units of safety management system. जो पिछले क्लास में मैं बता दिया हूँ कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो चार बेसिक पिलर और स्तंभ और फंक्शनल यूनिट रहता है वो ये है चार: सेफ्टी पॉलिसी, सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट, सेफ्टी प्रमोशन एंड सेफ्टी एश्योरेंस. So first of all, we discuss about what do you mean safety policy. Safety policy is a very simple subject. It's a very easy subject to understand. Safety policy ये कहता है कि safety policy is related to health and safety. Is a written document or a statement by an employer stating the company's commitment for the protections of health and safety of the employees to the public. That means safety policy is nothing but it is a written document or it is a written statement. A लिखित statement और लिखित document है जो कुछ रूल्स और सेफ्टी का रूल्स और रेगुलेशंस और ऑब्लिगेशंस को कंप्राइज किया हुआ है, ऑब्लिगेशंस को धारण करके रखा हुआ है, सस्टेन करके रखा हुआ है. सो ये एक लिखित स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट है. जो लिखित स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट कौन प्रोवाइड करता है? एक एम्प्लॉयर, एक ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेड रहता है, एम्प्लॉयर रहता है, वो ये सेफ्टी पॉलिसी को क्रिएट करता है, सेफ्टी पॉलिसी को कंस्ट्रक्ट करता है, उसको डेवलप करता है और एक रिटन स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स उसको बनाता है, जो है लीगल रिटन स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाता है. और किसके लिए बनाता है? स्टेटिंग द कंपनीज कमिटमेंट. इस रिटन डॉक्यूमेंट और इस रिटन स्टेटमेंट के द्वारा वो एक कमिटमेंट करता है, कंपनी के तरफ से एक कमिटमेंट करता है. किसके लिए कमिटमेंट करता है? ना एक स्वस्थ और एक सेफ्टी एटमॉस्फेयर और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर और हर तरह के सेफ्टी रिलेटेड और हर तरह के सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए टू हिज एम्प्लॉइज और टू हिज वर्कर्स. तो ये एक आपका लिखित स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट से रिटन स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी कमिटमेंट करता है उसके काम के लिए, उनके जो वर्कर्स, उनके जो स्टाफ्स और उनके जो वर्कर्स रहते हैं उनके साथ एक कमिटमेंट करता है, उनके साथ एक एग्रीमेंट करता है. और वो कमिटमेंट में ये करता है, कमिटमेंट ये करता है कि वो हर दिशा से, हर तरफ से और हर कोशिश संभव वो सेफ्टी का, हर प्रकार का सेफ्टी प्रोवाइड करेगा अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को ड्यूरिंग देयर वर्क और ड्यूरिंग देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेफ्टी पॉलिसी. This is the first point of the safety policy. In second point, it is written that it is endorsed commitment by the management to its employees regarding the health and safety. It is endorsed. Endorsed की मतलब है ये सेफ्टी पॉलिसी एक रिटन डॉक्यूमेंट से, रिटन स्टेटमेंट से, जिसके द्वारा थ्रू व्हिच an organization, a company is promised, is strongly committed, is strongly promised before his workers, before his employees,
before his staffs is only to provide them different types of safety, all types of safety, and provide also a healthy or safety atmospheres for them during their work. This is all about your definition of safety policy. और safety policy मतलब ये होता है. And next, so in second we'll discuss about, that is this is the definition of safety policy that I have studied. After that, in simple sentence, safety policy is otherwise defined as, so an organization's safety policy is a, this is the second definition, which is very simple to understand what do you mean by safety policy. So the definition is, so organization safety policy is a recognized written document. It is a recognized written document. Recognized की मतलब है जो अनुमोदित हो गया है, recognized हो गया है, वो जो allowed हो गया है, recognized written document और written statement, एक written statement है जो हम उसका definition में पढ़ चुके हैं. So ये एक allowed और ये एक recognized और ये एक universally accepted written document or statement of that statement, written statement documents covers, or that document sustains only the agreements, only the commitments, we can say commitment or promises, in which regard the promises of commitment to protect the health and safety. प्रोटेक्ट की मतलब है सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना. हेल्थ किस बारे में ना, हेल्थ एंड सेफ्टी. हेल्थ आपका स्वास्थ्य और जितने प्रकार का सेफ्टी रहता है, पर्सनल सेफ्टी रहता है, काम के दौरान सेफ्टी रहता है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज का मतलब जो स्टाफ वर्कर्स रहते हैं वर्क फील्ड में, उनका कंप्लीट हेल्थ और वर्क जितने भी वर्क उनका वर्क रिलेटेड सेफ्टी है, उस सेफ्टी के लिए वो कमिटमेंट करता है. सेफ्टी पॉलिसी एक रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिकॉग्नाइज्ड रिटन डॉक्यूमेंट्स और रिकॉग्नाइज्ड रिटन स्टेटमेंट्स के द्वारा वो एकदम कमिटमेंट करता है, वर्कर्स को प्रॉमिस करता है कि हर तरफ से इन एनी मींस ही विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शंस, और इन एनी मींस और एवरी मींस ही हैज टू provide all types of safety related to his health and its work and their work. So health and safety of the employees as well as the surrounding. एक surrounding का मतलब एक atmospheres, एक atmosphere को provide करना है. Surrounding community, community का मतलब है एक समाज, एक society और एक community, a group of people having different religions, community which is full of safety, which is full of healthy. ये कमिटमेंट सेफ्टी पॉलिसी करता है और ये एग्रीमेंट सेफ्टी पॉलिसी करता है. सो सेफ्टी पॉलिसी इज सिंपली वी कैन से सेफ्टी पॉलिसी इज नथिंग बट इट इज ए simply it is a recognized written document or written or recognized written agreement, promise from the organizations or from the company's owners, from the employers to their employees in different workplace field. So this is all about your safety policy. Then we will discuss about the main features of safety policy. So safety policy जो written document है, written commitment है, हम पढ़े written commitment, it is completely written commitment. That written commitment, what are the subjects or what are the themes that written documents, recognized written document or written commitment, which is known as safety policy, is possessing. So what are the main features? The first feature of safety policies is management intent and desire to achieve safety of personnel.
So the first and foremost aim of safety policy, or the first subject which is included in safety policy, that in all cases the safety management, that is the safety policy tells that in each cases safety management intent and desire to, intent का मतलब है एक इंटरेस्ट और एक एंथू रखना पड़ेगा, वो एक डिजायर और एक कीन इंटरेस्ट रखना पड़ेगा टू अचीव करने के लिए। क्या अचीव करने के लिए? पर्सनल सेफ्टी ऑफ इट्स वर्कर्स। ऑर्गेनाइजेशन अंदर जो जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय स्टाफ काम कर रहे हैं, उनके पर्सनल सेफ्टी के डायरेक्शंस में कंप्लीट सजाग रहना चाहिए और उनका कंप्लीट पर्सनल सेफ्टी को अचीव करना पहले गोल, मेन पर्पस रहना चाहिए सेफ्टी मैनेजमेंट का। ये सेफ्टी पॉलिसी जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो पहले बोलता है। सो फर्स्ट मेन फीचर ऑफ द सेफ्टी पॉलिसी इज दैट सेफ्टी पॉलिसी always tells that safety management should be intent and designed to achieve personal safety of the workers, of the employees at every means at the work site. And the second main feature is scope of safety activities. Scope of safety activities, that means scope means एक फैसिलिटी को डेवलप करना है, एक स्कोप क्रिएट करना है, एक माहौल क्रिएट करना है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, जिस एटमॉस्फेयर से और जिस एटमॉस्फेयर्स और जो माहौल विल बी फुल ऑफ सेफ्टी एक्टिविटीज। जितने भी इस टाइप का वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर्स रखना होगा, सेफ्टी पॉलिसी बोल रहा है इस टाइप का एटमॉस्फेयर रखना होगा आपका वर्क साइट में, जिसमें हर प्रकार का काम, आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो, आपका ऑपरेशंस का काम हो, डिफरेंट ऑपरेशंस, मेसिंग ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जिस टाइप का काम हो, सिविल का जिस टाइप का काम हो, उस काम में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस और जो सेफ्टी मेथड्स को अडॉप्ट करना है, उस सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेथड्स को अडॉप्ट करके सबका एक सेफ्टी एक्टिविटीज और सेफ्टी का एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। In respect to that work, employees or staffs should be done activities or should be done such type of activities which is completely safety. So safety related activities must be, or safety related activities must be done by the workers, employees, and they should create such type of atmosphere. So the second main feature of the safety policy is it tells that safety policy or written document or written commitment poses that and scope should be created and scope should be built of where or which is completely full of safety activities and or safety activities covered, you can say. And next, the main feature of safety policy is safety documentations. That means safety policy tells that the all types of safety documents में आपका इंसिडेंट रिपोर्ट रहता है, एक्सीडेंट रिपोर्ट रहता है, डिफरेंट टाइप्स का चेक लिस्ट रहता है। सो ये सब आपका सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स में आता है। जो रिटर्न ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो सेफ्टी को रिलेट करता है, उसको सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स इज ऑल्सो हेल्प टू train the employees, train the workers with related to safety, check whether the work is safely progressing or not. Safety documents, documentation of safety document helps. Then safety document also helps to audit or to inspect or audit the work site, whether that work site is completely healthy or danger free or not. So all types of safety documentations possessed by the safety policy. Then next feature is safety authority. Safety authority means the authoritative personnel
those are responsible for the safety. Those are responsible for creating the safety atmosphere, healthy atmosphere at the work site. That authority which is related to safety are also comes under safety policy. So next main feature of the safety policy is safety authority. And next one is rules, acts and standards. rules का मतलब नियम होता है, एक्ट का मतलब कार्य होता है, स्टैंडर्ड जो लेवलाइज्ड है, जो स्टैंडर्डाइज्ड होता है कुछ काम करने के लिए, कुछ मटेरियल को हम मैकेनिकल और सिविल मटेरियल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्रेडेशन और स्टैंडर्ड मटेरियल रहता है। उस स्टैंडर्ड का मटेरियल हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड अनसेफ कंडीशंस और इन ऑर्डर टू अवॉइड डेंजर और एक्सीडेंट। सो पहले हम जो सेफ्टी बेसिक सेफ्टी टिप्स है, कोई भी काम करने से पहले जो बेसिक सेफ्टी टिप होता है, कौन सा बेसिक सेफ्टी टिप रहता है। पहले एक बंदे एम्प्लॉय काम करने से पहले वो काम के बारे में कंप्लीट उसको जानकारी और एक्सपीरियंस चाहिए, और काम के अंदर जो भी हाजर्ड से रिस्क है उसको वो असेसमेंट करना चाहिए, और काम करने वक्त जितना जो पर्सनल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करना है उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पर्टिकुलरली यूज करना है, केयरफुली और माइंडफुली काम करना है। ये आपका सेकंड सेफ्टी टिप्स में आ जाता है। काम के दौरान कोई भी हेस्टीनेस और हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ये आपका बेसिक सेफ्टी टिप में आ जाता है। सो इस टाइप का जो सेफ्टी टिप्स का मतलब है रूल, कुछ सेफ्टी का नियम और रूल्स है जिस रूल को फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सेफली वर्क। सो इसको बोलते हैं सेफ्टी रूल्स। If we following that safety rule, if we act likewise, then it goes your acts. So rules, safety rules. उसके बाद एक्ट आ गया, सेफ्टी रूल के हिसाब से, सेफ्टी लॉ के हिसाब से अपने वर्क की जो भी एक वर्क हाइट में आप काम कर रहे हैं तो ऊपर चढ़ते वक्त आपका वर्क हाइट में काम करने के लिए आपका कंप्लीटली सेफ्टी शूज चाहिए और एक हार्नेस चाहिए, सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस जिसको बोलते हैं, फुल बॉडी हार्नेस चाहिए आप, जिसके वजह से आप हाइट में काम कर सकते हैं। और ये आपका फॉलिंग प्रोटेक्शन देता है, और एक सेफ्टी नेट चाहिए, वर्किंग हाइट में आप काम करने सेफ्टी नेट चाहिए। उसके बाद हेलमेट वो जो कंपलसरी है, और ग्लोव्स ये सब वगैरह कंपलसरी है। तो ये आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आ जाता है। सो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपका बेसिक रूल, सेफ्टी रूल्स बोलता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के द्वारा काम करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक सेफ्टी टिप्स है बाय द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन सेफली वर्क, वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम different types of accidents, from different types of injuries. And next one is standards. स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि एक यूनिट रहता है जो यूनिट में और जो स्टैंडर्ड में हम सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एट द वर्क साइट। एंड फाइनल वन इज ऑडिट टीम, सेफ्टी ऑडिट टीम। दैट मींस safety policy, which is a written document or which is a written commitment or agreement. It also possesses regarding the subject of safety audit or team of safety audit. That means एक टीम है, एक ग्रुप ऑफ पीपल और एक ग्रुप ऑफ पीपल का टीम है जो आपका ठीक सही तरह से वर्क साइट में सेफ्टी रिलेटेड और सेफ्टी का सही काम हो रहा है कि नहीं उसको चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और जितने भी सेफ्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, रिपोर्ट्स है, उनको ऑडिट करते हैं। ये आपका फाइनल मेन फीचर्स में आ गया है सेफ्टी पॉलिसी का। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द सेफ्टी पॉलिसी। देन आफ्टर क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट 3 बेसिक कंपोनेंट्स और पिलर ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज सेफ्टी रिस्क असेसमेंट, safety assurance and safety promotions. I hope you will understand this the subject of safety policy very well. Thanks a lot. Thank you. We will see next class.